Welcome all my students of VTC 1064. Today is rainy day and today is stormy day. बाहर पे अभी आंधी चल रहा है, यहाँ से दिखाई देता है. हम अभी तुम लोग को लार्ज स्केल रिटेल के बारे में समझाएगा. What is example of large scale retail shop? लार्ज स्केल रिटेल शॉप का कुछ उदाहरण तुम्हारे पास हम अभी देगा. कौन सा उदाहरण है? लार्ज स्केल रिटेल का उदाहरण है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ শপিং মলস जैसा बिग বাজার. এছাড়াও তোমাদের কাছে আমি এই যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিটেল স্টোরগুলো বলছি তাদের আমি আলোচনা করব. এখানে আমি আলোচনা করব লার্জ স্কেল রিটেল সম্পর্কে. ঝড়ের আওয়াজে তোমাদের আমার কথা শুনতে একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু তোমাদের তো ক্লাস করতেই হবে, কাজেই ছুটি তো তোমাদের দেয়া চলবে না, কাজেই তোমরা করো. প্রথমে আমি বলছি চেইন স্টোর. চেইন স্টোর বলার আগে আমি একটু তোমাদের বলে দিই লার্জ স্কেল রিটেল বলতে কী বোঝায়. From the viewpoint of volume, the retail trade may be two types, one small scale and another large scale. Out of the small scale business, pavement stalls, hawker, tea stalls, etc. are small scale business. But at present, a strong wave of mass production is found, and this indicates to establish large-scale retail shops. The large-scale business can avail the benefit of economy in cost of different aspects. Departmental stores, chain stores, multiple shops, supermarket, and consumer cooperative stores are the shop of large-scale retail trade. Now I will discuss you about chain store. চেইন স্টোর কাকে বলে? তাহলে এতক্ষণ তোমাদের আমি বললাম বিভিন্ন ধরনের লার্জ স্কেল রিটেল ট্রেড সম্পর্কে. লার্জ স্কেল রিটেল ট্রেডে কি হয় না, আমরা যেমন আমাদের আশেপাশে চায়ের দোকান, মুদিখানার দোকান এগুলো যেরকম দেখছি, আধুনিক সমাজে জীবন ধারণের মানের পরিবর্তনের সাথে সাথে, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে, আর্থিক ইনকাম বাড়ার সাথে সাথে, ইনকাম ক্যাপাসিটি বাড়ার সাথে সাথে উচ্চ ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন লোকদের এলাকাতে, এলাকা বিশেষে এলাকার উপর ভিত্তি করে সেই সমস্ত এলাকাতে কি গড়ে ওঠে না, সেই সমস্ত এলাকাতে লার্জ স্কেল রিটেল বিজনেস গড়ে উঠেছে. সেই লার্জ স্কেল রিটেল বিজনেসের মধ্যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, মানে একই ছাদের নিচে বিভিন্ন রকমের জিনিস পাওয়া যায়, চেইন স্টোর, মাল্টিপল শপ, কনজিউমার কোঅপারেটিভ সোসাইটি, এই সমস্তগুলো. বাইরে ঝড়ের আওয়াজের জন্য তোমাদের শুনতে একটু অসুবিধা হতে পারে, কিছু করার নেই, আমারও পড়াতে অসুবিধা হচ্ছে. Now I will tell about the description of chain store. The chain store are various stores under the same ownership, management and control, and located in different localities of a city or spread over a market of center in the country. আরেকবার আমি বলছি, চেইন স্টোর আর ভেরিয়াস স্টোর্স আন্ডার দ্য সেম ওনারশিপ, সেম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল, and located in different localities of a city or spread over a member of center in the country. एक ही मालिकानाएं, एक मालिक का अधीन में एक चेन स्टोर होता है. एक मालिक का अधीन में जैसा होता है, इसका एक मालिक का अधीन में इसका कंट्रोल का काम चलता है, और एक सिटी के अंदर डिफरेंट लोकेशन में ये बिजनेस हो सकता है. जैसा यहाँ में क्या होता है ना, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्टिंग गुड्स इट परचेज centrally different types of goods and sells through its own retail shop.
chain store established by a manufacturer is a type of multiple shop and is nothing but an example of simple retail business. When it is established by the wholesaler for retail sale, it is called chain store. Example, M.A. Toss and B.K. Shah as a tea merchant are example of chain store. B.K. Shah as a tea merchant are example of chain store. এখানে আমি তোমাদের দুটো কথা বলে দিই, চেইন স্টোর আর মাল্টিপল শপ দুটোই কিন্তু খুব কাছাকাছি, কিন্তু দুটোর মধ্যে বেসিক পার্থক্য আছে। চেইন স্টোর তখনই আমরা বলবো যখন একজন হোলসেলার বিভিন্ন রিটেলারদের একজন হোলসেলার যখন উৎপাদককারীর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে তিনি খুচরো রূপে বিভিন্ন কাস্টমারদের কাছে বিক্রি করছেন, তখন কিন্তু এটা চেইন স্টোর। কিন্তু যখন একজন উৎপাদনকারী সরাসরি শহরের বিভিন্ন স্থানে তার উৎপাদন কেন্দ্র, উৎপাদন কেন্দ্র নয়, তার বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করছে, উৎপাদন হচ্ছে এক জায়গায় কিন্তু তার বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে সে বিক্রি করছে, তখন হচ্ছে मल्टीपल शॉप, तखन ताके हमरा बोलबो मल्टीपल शॉप। तो क्या बोला ना, जब एक रिटेलर बा होलसेलर बहुत से सामान प्रोड्यूसर से खरीद करने के बाद जब कोई प्लेस में शहर के अंदर बा बहुत शहर में उसको दुकान का शाखा खुला, वहाँ से कस्टमर को सामान बेचता है, उसको बोला जाता है चेन स्टोर। जब एक प्रोड्यूसर वो खुद उसको प्रोड्यूस किया सामान जब बेचने के लिए बहुत सा आउटलेट खुला, बहुत सा दुकान खुला, शहर का बहुत मोहल्ला में बहुत शहर में खुल सकते हैं, तब उसको बोला जाएगा ना क्या ना मल्टीपल शॉप। मतलब मल्टीपल शॉप प्रोड्यूसर के द्वारा प्रतिष्ठित एस्टैब्लिश होता है, लेकिन चेन स्टोर प्रोड्यूसर के माध्यम में नहीं, बड़ा टाइप रिटेलर के माध्यम व बड़ा टाइप होलसेलर के माध्यम प्रतिष्ठा होता है। ऐसा किस्म का चेन स्टोर का एग्जाम्पल क्या है, बीके शाह का टी का शॉप। समझे सकदवनी का। अभी हम तुम लोग को समझाएगा फीचर ऑफ चेन स्टोर। বাইরে বৃষ্টির জন্য অসুবিধা হচ্ছে একটু, তাও তার মধ্যে তোমাদের আমি বলছি। Feature of some chain store. Number 1, ownership and management. The shops are situated in different locality under the same ownership and management. The activities are derived and directed, controlled as per principle determined by the central office। मतलब क्या बोला यहाँ पर ना, the shops are situated in different locality under the same ownership and management। मतलब इस टाइप का चेन स्टोर का दुकान शहर का बहुत महल्ला डिफरेंट महल्ला में डिफरेंट लोकेलिटी में इस्टेब्लिश होता है, प्रतिष्ठित होता है, लेकिन प्रतिष्ठित होने के नाते भी ये कैसे चलता है ना, एक सेंट्रल डायरेक्शन के माध्यम में ये चलता है। मतलब मालिक एक है, इसलिए मालिक का बहुत सा दुकान यहाँ पर है, मालिक जो डिटरमिन करेगा, जो डिसीजन लेगा, उसके मुताबिक ये शॉप ये चेन स्टोर चलता है। The activities are directed and controlled as per principle determined by the central office। मालिक जो उसका ओनर है उसको इच्छा के मुताबिक वो जो प्रिंसिपल निर्धारण किया, उसको प्रिंसिपल के मुताबिक, उसके प्रिंसिपल का इच्छा के मुताबिक, उसको जो सोचा जैसा उसके विचार के मुताबिक ये चेन स्टोर चलता है। चेन स्टोर का काम चलता है, कौन स्टोर में क्या होगा, वहाँ पर ड्यूटी आवर्स क्या होगा, कौन सा कर्मी वहाँ पर काम करेगा, वहाँ में कैसे कैसे सामान
मैंने सामान तो एक ही रहता है, लेकिन उसे सामान का बेचने का तरीका क्या होगा, कंज्यूमर के साथ कैसा बिहेव होगा, सब के बारे में वो ध्यान देता है। इसलिए सब चेन स्टोर, सब जितना ही चेन स्टोर रहता है, सब चेन स्टोर का रूल्स रेगुलेशन सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन परचेज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सेलिंग। सेंट्रलाइजेशन ऑफ परचेज क्या बोला, पहले हम तुमको लोग को बताया ना, चेन स्टोर में जो सेल परचेस होता है, मतलब बेचने के लिए तो सामान खरीदना पड़ता है, वो प्रोड्यूसर के पास से एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होलसेलर खरीद के ले आता है, लेके स्थापित करता है। एक साथ बहुत ह्यूज क्वांटिटी में इसको खरीदता है, और वो जो खरीदा ना एक साथ बहुत क्वांटिटी का, वो जो अलग अलग लोकेलिटी में उसको जो ब्रांच है उसके माध्यम में वो सेल करता है। इसलिए बोला गया ना, सेंट्रलाइज परचेसिंग एंड डिसेंट्रलाइज ऑफ सेलिंग। तो क्या बोला, अनदर रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज सेंट्रलाइज परचेसिंग एंड डिसेंट्रलाइज सेलिंग। दिस मीन्स दैट गुड्स आर परचेस्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड stored in a central place, and the same are sold through different selling center. Okay? तो डिफरेंट सेलिंग सेंटर के माध्यम इसको सेल किया जाता है, लेकिन इसको एक तो सेंट्रल प्लेस में इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है लोकेशन। द स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड इन पॉपुलर रीजन ऑफ द सिटी, एज सच इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी टू बी एस्टैब्लिश। मतलब इसका यहाँ पर इसका स्थापन किया जाएगा ना, जहाँ से शहर का बहुत सेंट्रल प्लेस है, शहर का सिटी का, वहाँ से बहुत आदमी का मतलब भेंट होता है, वहाँ से बहुत आदमी जाता है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट का बहुत सुविधा है, ऐसा मोहल्ला में इसको स्थापन होता है या इसको इस्टेब्लिश किया जाता है इस लोकेशन में। शैजने की बोलছে ना, द स्टोर आर जनरली लोकेटेड इन पॉपुलर रीजन ऑफ ए सिटी, एज सच इट इज़ convenient for the customer to purchase good from stores। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एक तो बात है, ट्रांसपोर्ट वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहता है, तब तो वहाँ पर आदमी आके सामान खरीद सकते हैं, सामान ले सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, इसको ऐसा स्थान में, इसको प्लेस पे इसको इस्टेब्लिश किया जाता है ना, जहाँ से कनेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जहाँ पर अच्छा है, वहाँ पर एक प्रतिष्ठान स्थापन करना बहुत सा सुविधा दिखाई देता है। उसके बाद है स्पेशलिटी, विशेषत्व। द ओनर ऑफ दिस बिजनेस डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट प्रोक्योर फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस एंड सेल थ्रू देयर शॉप्स। चेन पहले ही हम बताया, उसको डेफिनेशन में ही, चेन स्टोर में जो ओनर है वो प्रोड्यूसर नहीं है, वो प्रोड्यूसर के पास से सामान मंगा के, कीन के, खरीद के ले आता है, फिर वो उसको डिफरेंट शॉप के माध्यम में उसको क्या होता है, बेचता है। ओके। उसके बाद है डेकोरेशन ऑफ द शॉप, मतलब सजावट, दुकान का सजावट कैसा होता है, डेकोरेशन ऑफ द शॉप, दुकान की रकम হবে डेकोरेशन ऑफ द शॉप। ईच शॉप इज uniformly decorated. This shop are centrally managed, and so there is no difference in outward structure। मतलब पहला लाइन हम क्या बोला, each shop is uniformly decorated, मतलब क्या है ना, हर शॉप एक ही तरह ही सजावट होता है, हर तो शॉप के सजावट एक ही तरह ही होता है। क्यों एक ही तरह ही होता है? नहीं तो सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी के माध्यम, इसको तो सेंट्रल एक ओनर रहता है, एक ही ओनर है, सेंट्रल जो डिसाइड करेगा उसके मुताबिक होता है। इसलिए सब दुकान में एक ही किस्म का सजावट दिखाई देता है। ठीक है। बाटा का शुभ यार नहीं बोलेगा, बी के शाह का चाय का दर्द, सब दुकान इन जनरल विंडो ड्रेसिंग सेम तरह का है। नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स क्या है ना, द शॉप डील इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड।
but each shop deals in preferably same types of goods. सब दुकान में सब इसको जितना ही ब्रांच रहता है ना, ये तो सेंट्रली इसी तो गुड्स सामान खरीदना जाता है। देखो आंधी का कितना तेज है, बाहर से कितना तेज हवा देता चलता है अभी, ताकि ना सेंट्रली परचेस किया जाता है सामान, क्योंकि ना उसके बेचने के लिए। जब सेंट्रली जहाँ से सामान परचेस किया जाता है उसे एक किस्म का एक टाइप डिफरेंट मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट, लेकिन उसका वेराइटीज क्वालिटी अलग होगा, वैरायटी होगी, तो डिफरेंट टाइप्स का सामान। जैसा डिफरेंट चाय তার দোকানে চা পাওয়া যায় অনেক রকমের চা, টাটা টি, লিপটন টি, ব্রুক বন্ড টি, এরকম বিভিন্ন টি, গ্রিন টি, এরকম বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ভ্যারাইটির সব রকমের জিনিস সে কেনে একই জায়গাতে। গুণমান যার জন্য সেম, उसको क्वालिटी क्वांटिटी सेम ही रहता है। तो यही सामान ही डिफरेंट उसको आउटलेट के माध्यम में उसको क्या करता है, बेचता है। नेचर ऑफ सेल, the goods are sold at fixed price and each shop sells good at the same price. Okay ना, उसको प्राइस वैल्यू फिक्स्ड रहता है। एक एक दुकान का वैल्यू अलग अलग नहीं होता है, सब दुकान का वैल्यू फिक्स्ड रहता है। ये यहाँ पर विशेष वैशिष्ट्य है। इस वैशिष्ट्य यहाँ पर मेन তুমি এখানকার এই একটা চেন স্টোরে, তুমি একটা শ্যামনগরের চেন স্টোরে যাচ্ছ, তুমি একটা কাকিনাড়া চেন স্টোরে যাচ্ছ, নৈহাটির চেন স্টোরে যাচ্ছ, তুমি যে চেন স্টোরেই যাও না কেন একই জিনিসের সেম वैल्यू থাকবে। इसको तुमको याद रखने पड़ेगा। चेन स्टोर में जो जैसा देखो इजीडे क्लब नैहाटी में उसको सामान का जो वैल्यू है, तुम लोग को श्यामनगर के कहाँ पर है ना, चौरंगी के आसपास है, चौरंगी नहीं कहाँ पर, पिंकल के आसपास शायद, वो वहाँ पर उसको वैल्यू, कलकत्ता में वैल्यू, बैरकपुर में वैल्यू सेम ही रहता है। इसको कोई अगल बगल नहीं होगा, इसका वैल्यू एकदम फिक्स्ड रहता है। ये इसका मेन फीचर है, मतलब इसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। गुड्स का वैल्यू हर टाइम फिक्स्ड रहता है। द गुड्स आर सोल्ड एट फिक्स्ड प्राइस एंड ईच शॉप are sold same types of goods. It is very important. Now हम तुमको इसके बारे में थोड़ा सा क्या बोलेगा ना, इसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलेगा। The form of retail business may be established under the ownership of either sole proprietorship or partnership or joint stock company. It is very important.